Hello, my dear children. Very good afternoon. Now, we should study yesterday about the accounting equation, going through the practical questions. So, first we have to know the meaning of accounting equation. Learning objectives, meaning of accounting equation, effect of transaction on accounting equation, meaning of debit and credit, rules of debit and credit. These are the objective. Yes, today we have to study in accounting equation. Prior to understanding an accounting equation, it is essential to know about a balance sheet. Balance sheet entails a form, the assets column and the liabilities column. So, we can draw the figure of balance sheet. Suppose that in liabilities column, capital and liabilities; in assets column, fixed assets, current assets, non-current assets, fictitious assets. So these are the assets. Now, assets are recorded on the right hand side of the balance sheet, that is the assets column, and capital and liabilities are recorded on the left hand side. At any point of time, the total of the both side of the balance sheet is always equal. Remember, because the assets of a business are purchased either from the funds capital supplied by the proprietor or from the funds provided by external parties. The balance sheet discloses that there are total assets worth equal to total liabilities plus capital. So, in such positions, the equation will be assets equal to liabilities plus capital. When the transaction takes place, just the transaction takes place, now our liability is equal to assets minus capital, or capital is equal to assets minus liabilities. That will be the formula of assets and liabilities. Accounting equation signifies that the assets of a business are always equal to the total of capital and liabilities. Means assets is equal to liabilities plus capital. A business transaction will result
in the change in either of the assets, liabilities or capital of the firm. And even after the change, the assets will be again equal to the total of capital and liabilities. Remember, if a business transaction result in the increase of assets, there will also be a corresponding increase in the amount of either capital or liabilities by the same manner. Remember, मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी भी प्रकार का चेंजिंग, परिवर्तन, चाहे वो इंक्रीजमेंट हो चाहे डिक्रीजमेंट हो एसेट्स या लायबिलिटीज में, तो दोनों पक्ष प्रभावित होता है। जैसे सपोज दैट X, one of the party, starts a new business and the following successive transaction take place. Effect of transaction on accounting equations. X started business with rupees 75,000 as capital. The effect of the transactions will be that the firm has received assets totaling 75,000. Whatever the capital invested by the owner X, just the assets received by the firm, that is the 75,000 in the form of cash. And the claims against the firm are also 75,000 in the form of capital. और फर्म के अगेंस्ट आपका क्लेम बन जाता है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है बेटा कि यदि कोई खर्च होता है तो हमारा कैश कम होता है और उतने से हमारी कैपिटल भी कम हो जाती है। लेकिन सी वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, whether purchasing of some assets, decreasing the some assets, increasing the other assets, no effect on liabilities or capital. In accounting equation, the transactions can be when the assets is equal to liabilities plus capital. In cash 75,000, liabilities 0, capital 75,000. That is the first equation after the first transactions started by X. Transaction 2. X purchased furniture for cash rupees 5,000. Now you can see decreasement in cash, but the furniture is acquired, mean only affecting the assets column. Affecting the assets column.
How will you do this one? Suppose that, for example, now this one is the practical question given in your books. Question number first, you can see over here, accounting terms, the transactions A equal to assets equal to liabilities plus capital. Now the first transaction that is given, started business with cash 1 lakh. So here in cash column 1 lakh, cash 1 lakh, the capital will be also 1 lakh. Second transactions, you can see in second transactions, my dear, in second transaction purchase furniture for cash 5,000. So the cash decreases with the 5,000. आप देखेंगे कि ये कई तरफ प्रभाव पड़ा है, कैश 5,000 से कम हो रहा है और एक आइटम जो है फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है 5,000 से, तो ये हो गया आपका। अब जो न्यू इक्वेशन बनेगा बेटा वो होगा ये 95,000 कैश हो जाएगा आपके पास और 5,000 का फर्नीचर हो जाएगा, लायबिलिटी कुछ नहीं है, 1 लाख कैपिटल। ये इस तरह से करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तीसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश कितने का? 20,000 का। तो आपका 20,000 से कैश कम हुआ और अदर एसेट्स क्या हो गई? ये फर्नीचर का कुछ नहीं, एक आपका आइटम बढ़ गया 20,000 से गुड्स स्टॉक बढ़ गया आपका, उधर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां भी 0 हो गया प्लस 1 लाख, यहां भी कुछ नहीं होगा, 0 हो गया। अब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगा 75,000 आपके पास कैपिटल हो गई, कैश हो गया 5,000 का, फर्नीचर 20,000, स्टॉक 1 लाख कैपिटल। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, रिमेंबर। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000। तो आप क्रेडिट पर खरीद रहे हैं तो कैश पर कोई प्रभाव नहीं, 0 प्लस फर्नीचर भी 0 प्लस 36,000 का सामान आपके पास आ रहा है इक्वल टू, और ये 36,000 के बाद की लायबिलिटी हो गई, आपको इसे फ्यूचर में पेमेंट देना है। अब देखें 75,000 आपका 5,000 का फर्नीचर और 56,000 का आपका क्या हो गया? स्टॉक हो गया आपके पास। यहां पर 36,000 की लायबिलिटी 1 लाख, क्लियर? अब पेड फॉर रेंट, रेंट आप पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कैश आपका कम हो रहा है, कितना है? 700, तो माइनस 700, इधर कोई प्रभाव नहीं, स्टॉक पर भी कोई प्रभाव नहीं, लायबिलिटीज पर भी कोई प्रभाव नहीं, 0 लिख देंगे। 700 आपका माइनस हो गया किससे? कैपिटल से, चूंकि एक्सपेंस है तो यहां हो गया 74,300
प्लस 5,000 का फर्नीचर प्लस 56,000 स्टॉक इक्वल 36,000 लायबिलिटी 99,300 आपका कैपिटल। लॉस ट्रांजेक्शंस है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। 40,000 का सामान आप 20% प्रॉफिट लेकर के आप क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। तो कितने में बेच रहे हैं, 40,000 का 20% 8,000 होगा तो 48,000 एसपी होगा। इतना आपके पास कैश आया, 48,000 से कैश इंक्रीज हुआ, प्लस फर्नीचर पर कुछ नहीं, प्लस अब 40,000 का आपका ये स्टॉक कम हो रहा है तो माइनस 40,000 स्टॉक में से 40,000 इसको प्रभावित हुआ, 0। आप देखेंगे कि आपको 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगी प्लस 8,000। अब आपका हो जाएगा 1,22,300 आपका कैश आपके व्यवसाय में, 5,000 आपका फर्नीचर, 16,000 का स्टॉक इक्वल टू 36,000 लायबिलिटीज। उसके बाद 8,000 का कैपिटल आपका हो जाएगा 1,07,300। इस तरह से ट्रांजैक्शन का प्रभाव पड़ता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप बेहतर ढंग से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो। इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर आपको समझाया कि ट्रांजैक्शन क्या प्रभाव डालता है। अब देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्यूशन बनाना शुरू करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस में होता है उस पर किसको प्रभावित कर रहा है, केवल एसेट्स कॉलम को प्रभावित कर रहा है कि लायबिलिटीज कॉलम को। यदि बेटा किसी भी प्रकार का खर्च होता है तो हमारी जो क्या है, कैश कम होने के साथ साथ कैपिटल भी कम होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते वक्त आप कैश कॉलम में आपका 50,000, कैपिटल भी आपकी 50,000, बट फर्नीचर फॉर कैश। तो भाई उतने से 500 से 500 का फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर कम हो जाएगा, अरे कैश कम हो जाएगा 500 से, और एक एसेट्स इंक्रीज कर जाएगी 500 फर्नीचर। कैपिटल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर जो क्रेडिट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एसेट्स इधर बढ़ेगा, गुड्स कैश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, और एक हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी। इस तरह से ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट 500 और 700 में आप बेच रहे हैं तो 200 का मार्जिन हो गया, तो 700 से कैश इंक्रीज कर जाएगा और 200 से कैपिटल इंक्रीज करेगी जो प्रॉफिट अर्न होगा, प्लस हो जाएंगे। और 500 जो है वो क्या होगा, उससे हम स्टॉक डिक्रीज कर देंगे, 500 का सामान हमारे पास से चला गया। अगला है रिसीव्ड रेंट। रिसीव्ड रेंट मतलब हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है इनकम हो रहा है, तो इनकम जब होगा तो हमारी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो रिसीव्ड रेंट है आपका 200 से, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 200 और उतने से हमारा एसेट्स भी इंक्रीज करेगा, कैश बढ़ेगा, तो कैश में भी 200 हम ऐड कर देंगे। परचेज गुड फॉर कैश 1000 का हम सामान खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो 1000 से हमारा कैश डिक्रीज कर रहा है, माइनस कर देंगे, और स्टॉक हमारा 1000 से इंक्रीज करेगा। लायबिलिटीज और कैश में के ऊपर इस ट्रांजैक्शन का कोई प्रभाव नहीं, केवल एसेट्स कॉलम में ही ये ट्रांजैक्शन प्रभाव डाल रहा है। विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकाल रहा है, तो बिजनेसमैन अपने निजी खर्च के लिए जब निकाल रहा है बेटा, तो उतने से हमारा कैश भी कम होगा और उतने से हमारी कैपिटल भी डिक्रीज होगी, दोनों तरफ प्रभाव डालेगा। तो कैश में से माइनस कर देंगे और कैपिटल से माइनस कर देंगे। पेड टू क्रेडिटर्स 400 हमारा कैश डिक्रीज करेगा और 400 से लायबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, माइनस कर देंगे उसमें से। पेड फॉर सैलरीज ये खर्च है, तो इतने से हमारा कैश भी डिक्रीज होगा एसेट्स, और कैपिटल भी 200 से डिक्रीज होगी। ये इस तरह से आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत आसान होता है बेटा, वेरी इजी। ये रिविजनल वीडियो है अकाउंटिंग इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, प्रैक्टिकल थियरी पूरा बता दिया हमने। इस वीडियो के माध्यम से यदि आप कोशिश करेंगे तो सारे क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। कोई कहीं दिक्कत आएगी, कोई ऐसे हेड्स आएंगे, तो आप उस तरह का प्रॉब्लम जैसे भेजते रहे हैं या फोन करके बताते हैं, उसको बता देंगे, हम उसको क्लियर कर देंगे। अब आज के लिए इतना ही, कम से कम 5-10 क्वेश्चन आप सॉल्व करें और अपना प्रॉब्लम भेजें बेटा, ताकि बताने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू। आप वीडियो देखें